and have understood. Practice is required. Okay, do practice more and more. So आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम शुरू करेंगे. See first the question. 3 marks sum it is. On 1st January 2016, Sanika decided to save rupees 10, rupees 11 on the second day and rupees 12 on the third day. If she decided to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? See, understand the question, what they have told. They have told that from 1st January 2016, Sanika has decided to save rupees 10. Okay, see, first day she saved rupees 10, second day she saved rupees 11, and third day she saved rupees 12. Okay, so 1 rupees is going to increase, right? So if she decide to save like this till 31st December, तो 31st December 2016 तक उसके पास कितना पैसे जमा हो जाएगा ये आपको बताना है. So what would be her total saving, यही पूछा है आपको, what would be her total saving, right? So we'll start in this way. See, 2016 is a leap year, you might be knowing. Okay, तो 2016 जो था वो leap year था, and you know what is a leap year, right? जिसमें 365 days के बदले 366 days होते. So number of days from 1st January 2016 to 31st December 2016 will be 366. ये एक important step है, this you should know. Okay, instead of writing 365 days, you have to write 366 days because 2016 is a leap year. The saving of Sanika per day beginning with the first day are 10, 11, 12 and till 366 days. Now we know that how does the saving have been started. First day 10 rupees, second day 11 rupees, third day 12 rupees, fourth day 14 rupees and so on till 366 days. So can I say the days which is given in this sequence 10, 11, 12, is it a AP? Yes, it is an AP because in दोनों का common difference क्या आ रहा है? Common difference is what? 1. So 1 is a common difference, that is constant, right? 11 minus 10 is 1, 12 minus 11 is 1. So we can say that the saving is in the form of AP, and from that we can say that A is equal to 10, correct? Can we say? Yes, we can say because first term is always T1 and T1 is also equal to A. And common difference, as I tell, what is the common difference? Common difference is 1. So you got A, you got D because it is an AP, right? अगर AP है तो आपको A भी मिल जाएगा और D भी मिल जाएगा. So total number of days in year 2 in the year 2016 is what? 360 days, 366 days, right? That is n. You got n also. ठीक है, आपको सब चीज़ें मिल रही है. देखिए, you got A, you got D, you got n, right? So what you have to find? Total saving. Total saving means what? S 366 because first day में 10 rupees, second day में 11 rupees, 12, third day में 12 rupees and 360 days. एक साल में कितनी सेविंग की सानिका ने, तो आपको सबको जोड़ना ही पड़ेगा ना, राइट? यू हैव टू ऐड सम, यू हैव टू टेक. तो S 366 you have to say. Now simple thing, you have to use the formula. You know this is a formula. Sn is equal to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 d, right? Now you know what is n. N is what? 366 upon 2. Instead of a you have substitute 10 and instead of n you have substitute 366 and then you have to solve it. 366 upon 2 can be written as 183. 2 tens are 20 and 366 minus 1 becomes 365 and 365 into 1 is 365, right? So what is the next thing what you will do? You will solve this. देखिए 20 plus 365 becomes what? 385 and 183 into 385 becomes what? 7455. So total saving of Sanika is what? 70,455 rupees. Correct? This is the total saving of Sanika in the year 2016. Are you getting this? समझ में आया आपको किस तरह से इसको फाइंड करना है, राइट? इजी सम, राइट? ओके, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट सम. सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम. एक स्कीम है, उसमें सचिन ने इन्वेस्टमेंट किया है कुछ. इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड ₹5,000. इन सेकेंड ईयर ही इन्वेस्टेड 7,000 and in third year he invested 9,000 and so on. Find the total amount that he invested in 12 years. देखिए ये 4 मार्क का सम है. ओके,
सचिन एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है, ठीक है, उसमें उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किए। फर्स्ट ईयर में उसने इन्वेस्टमेंट किए 5,000 रुपीज़, सेकेंड ईयर में 7,000 रुपीज़ और थर्ड ईयर में 9,000 रुपीज़। और जैसे जैसे साल बढ़ रहा है फोर्थ ईयर में, और देखिए 5,000 फिर 7,000 फिर 9,000, 2,000 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। फिर नेक्स्ट ईयर अगर फोर्थ ईयर में इन्वेस्ट करना होगा तो कितना करेगा वो, 11,000, राइट, एंड द सो ऑन। फाइंड द टोटल अमाउंट ही इन्वेस्ट, टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया 12 सालों में, 12 ईयर्स में, दैट यू हैव टू फाइंड। सेम थिंग अगेन इट इज देयर, सी ईयरली इन्वेस्टमेंट दे हैड गिवन 5,000 7,000 9,000 एंड सो ऑन। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 9,000 के बाद 11,000, उसके बाद क्या होगा 13,000 15,000 एंड सो ऑन, राइट। 2,000 का डिफरेंस आ रहा है। सो दिस इज एन एपी, यस इट फॉर्म्स एन एपी। अगर ये एपी है तो फर्स्ट टर्म कैन वी से एज ए, यस दैट इज 5,000, करेक्ट। एंड कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, अगर आप कॉमन डिफरेंस लेंगे तो आपको पता है 2,000 आ रहा है, तो आपको कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। यू गॉट ए, यू गॉट कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ ईयर इज व्हाट, एंड दैट इज 12 ईयर्स दे हैड टोल्ड कंप्लीटली। टोटल इन्वेस्टमेंट पूछा है, मतलब सम पूछा है। अगर एक साल में in first year they have invested 2,000, in second year he have invested 4,000 and so on, okay. So you have to add all the investment, okay. So whatever the investment are there you have to add them. So formula is same, you will use here Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 d, just you have to substitute and you will get the values. देखिए यहाँ पे सब्सिट्यूट किया, n is equal to 12, यहाँ पे भी n का वैल्यू 12 upon 2, what is a is what 5,000, what is n is what 12, right, and d is what 2,000 rupees. All this we have done. 12 upon 2 can be written as 6, 2 into 5,000 can be written as 10,000, plus 12 minus 1 is what 11 into 2,000, right. So if you solve this whole term, whole bracket में जितना पूरा टर्म है उसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 32,000, इंटू 6 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1,92,000. So total investment done again by him is in 12 years is 1,92,000. Is it clear? Simple steps are there. You have to just identify whether it is an AP or not. Once it is found that it is an AP, then you have to find A, D, N, and then use this formula, substitute the values, and you will get the answer. It is as easy as it is, okay. Just observation is required in this, and practice is required, right. See the steps and then we'll move to the next word problem. Okay, now next, there is an auditorium. Now you know what is an auditorium, right? Okay, with 27 rows of seat and 20 seats in first row, 22 seats in second row, and 24 seats in the third row, and so on. Find the number of seats in 15th row and also find the how many total seats are there in the auditorium. देखिए एक auditorium है, ठीक है, in that okay, one auditorium is there. In that you can see there are the 27 rows in a seats. You know what is rows and columns. This is called as rows. ऐसे लाइन्स को रोज बोलते हैं और इसको कॉलम्स बोलते हैं, राइट. तो रोज में ऐसे दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज थर्ड रो, इन दिस वे. सो 27 रोज ऑफ सीट्स, देयर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो. फर्स्ट रो में कितने सीट्स थे, 20 सीट्स थे. 20 सीट्स वॉज देयर इन फर्स्ट रो. 22 सीट्स इन द सेकेंड रो. सेकेंड रो में 22 सीट्स थे. थर्ड रो में कितने सीट्स थे, 24. तो आप मुझे बता सकते हो फोर्थ रो में कितने सीट्स होंगे. सो 20 है, 22 है, 24 है, 26. 2 का डिफरेंस आ रहा है, राइट. ये भी एपी फॉर्म कर रहा है, राइट. यस. तो आपको क्या पूछा है, फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम. टोटल सीट्स कितने थे ऑडिटोरियम में, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, सो व्हाट यू विल से, first of all these seats which are given in the row, that is an AP because 20 22 24, next number क्या होगा 26, next 28, next 30 32, in this way, right. So we can say that first number which is there, that is nothing but an A. You got A 20, and what is D from here, you can say that D is what 2. So you will say common difference is also 2, right. Total number of rows N, that is given 27.
n आपको दिया है, ये ऑलरेडी n इज़ 27. ओके, यू हैव टू नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो कितना है वो फाइंड करना है आपको, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सीट आपको फाइंड करना है. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है आपको कि फाइंड द नंबर ऑफ सीट. दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है. पहली चीज़ आपको फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो. 15th रो में जैसे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ऐसे 15th रो में कितने सीट्स है आपको फाइंड करना है. ओके, सो फाइंड द नंबर ऑफ रोज सीट्स इन द 15th रो, मतलब T15 आपको फाइंड करना है. और दूसरा क्या है, हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम. टोटल मतलब सम, ठीक है. तो आपको जब पता चलेगा कि कितने सीट्स है टोटल, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है. तो दो चीज़ आपको फाइंड करनी है. तो पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो. तो नंबर ऑफ सीट्स इन 15 रो कितना है, मतलब T15 आपको फाइंड करना. और सेकेंड आपको फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन 27 रो, मतलब 27 रो है वो ऑडिटोरियम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से 27 रो है. तो आपको 27 रो में कितने सीट्स है वो फाइंड करना है, मतलब S27 सबको जोड़ देना है, राइट. तो ये चीज़ आप कब फाइंड करेंगे S27, जब आपको T15 मिल जाएगा. बिकॉज T15 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15 रो. तो आप क्या करेंगे, T15 मतलब Tn का फॉर्मूला लगा देंगे. सो Tn यू नो इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D. So instead of n we will put 15. A के value 20 मिल गया, n is what 15 and D is what 2. If you solve this, you know now how to solve this. You will get the value that is T15, that is 48. So 15th row में कितने seats है, 48 seats. You got this right. So T15 एक बार मिल गया, ये आपका काम हो गया, एक आपने फाइंड कर दिया. दूसरा क्या फाइंड करना है आपको, नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन 27 रोज. कितने सीट्स है 27 रोज में वो आपको फाइंड करना है, मतलब S27. तो Sn का फॉर्मूला लगेगा, राइट. नाउ यू कैन सी दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Sn. जस्ट पुट द फॉर्मूला ऑफ Sn एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. इंस्टेड ऑफ n यू विल सब्स्टिट्यूट 27, राइट. A का वैल्यू इज 20, n इज फॉर 27 एंड व्हाट इज D, दैट इज 2. सब्स्टिट्यूट, सॉल्व दिस द स्टेप्स. आई होप यू नो नाउ दिस द स्टेप्स हाउ टू सॉल्व, ठीक है. आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर है. तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, दैट इज 1242. So there are the 48 seats in 15th row, एक आंसर मिला. और दूसरा क्या है, there are and 1242 seats total seats है in the auditorium. So I hope it is clear how to find out. Just the calculation matters. Okay, you know how to put the values, you know how to do the multiplication, how you know the formulas, then it will be very easy for you. ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए. और ये सब हम लोग ने अभी प्रैक्टिस किया था जब हम लोग ने एक्सरसाइज शुरू किया था, राइट, इन दैट टाइम. सो ऑल दिस थिंग्स यू शुड नो, करेक्ट. सो ऑल दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. ओके, एंड यू हैव टू बी अ गुड ऑब्जर्वर टू आइडेंटिफाई द सम, करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट सम विल गो. कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड फॉर अ वीक, दैट इज़ मंडे टू सैटरडे. कारगिल का जो टेम्परेचर था मंडे टू सैटरडे, एक रिकॉर्ड नोट किया गया कितना टेम्परेचर है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. ऑल रीडिंग वर इन AP, सब रीडिंग जो था AP में था. ओके, दे हैव टोल्ड ऑलरेडी अस. द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस. द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस, मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे. If the temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature on the other 5 days. 4 marks sum. Let us understand this with the help of the in this way. देखिए, पहले तो let the temperature of Kargil from Monday to Saturday कितना है वो हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वो डिग्री सेल्सियस में होगा. तो कितना है, they have told in AP, right? So Monday to Saturday. So if you count the days, how many days are coming? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Monday to Saturday, from Monday to Saturday. Right, 6 days are coming, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. So first thing you have to write in this way, A minus D, comma A plus D, comma A plus 2D, comma A plus 3D and comma A plus 4D respectively as per the condition. देखिए, मंडे को कौन सा टेम्परेचर था, A माइनस डी. ट्यूसडे को टेम्परेचर A था. वेनेसडे A प्लस डी, थर्सडे A प्लस 2D, फ्राइडे A प्लस 3D एंड सैटरडे A प्लस 4D. देखिए किस तरह से ये इंक्रीज़ हुआ. देखिए अगर सपोज A स्टार्ट करते हैं, ठीक है,
ए के बाद एक डी ऐड कर दीजिए तो 1 डी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी। थर्सडे में एक और डी ऐड कर दीजिए तो ए प्लस 2d। फ्राइडे में एक और डी ऐड कर दीजिए तो ए प्लस 3d। और 3d में एक और डी ऐड कर दीजिए तो ए प्लस 4d। और लेफ्ट हैंड साइड में ए माइनस डी विल बी देयर। ओके, दिस थिंग्स यू शुड नो एंड यू शुड रिमेंबर दिस थिंग्स। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा अगर ऐसा सम आता है तो। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इस तरह से आप याद रखिए। और लेफ्ट में जो रहेगा, जो पहला जो फर्स्ट डे रहेगा मंडे, उसको ए माइनस डी ले लीजिए। उसके बाद ट्यूसडे से शुरू करिए ए, फिर नेक्स्ट ए प्लस डी, फिर एक डी में एक और डी ऐड कर दीजिए तो इट बिकम्स ए प्लस 2d। 2d में एक और डी ऐड करिए ए प्लस 3d। ए प्लस 3d में एक और डी ऐड करिए ए प्लस 4d। सो एज पर द कंडीशन गिवन, देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है कि द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे was 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। देखिए सम लेना है आपको, सम मतलब ऐड करना है। किसका ऐड करना है? टेम्परेचर मंडे और सैटरडे का। तो आप टेबल में देखेंगे मंडे और सैटरडे का कौन सा टेम्परेचर है, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, और कितना टेम्परेचर था तब? वो 5 डिग्री सेल्सियस। दैट इज मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। इसको कैसे लिखेंगे वर्डिंग्स में? देखिए यहाँ पे, देखिए मंडे, सी मंडे का टेम्परेचर कितना था? ए माइनस डी। सम पूछा है ना मंडे और थर्सडे का, सॉरी मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर पूछा है, दोनों का सम पूछा है क्वेश्चन में, राइट? दोनों का सम, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया। इक्वल टू व्हाट? 5 टाइम्स मोर देन द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ठीक है, ट्यूसडे एंड सैटरडे, तो 5 टाइम्स मोर मतलब प्लस 5 हो जाएगा। और ए ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या था? ए प्लस, उन दोनों का भी सम होगा, प्लस ए प्लस 4d प्लस 5 आ जाएगा। करेक्ट? इन दिस वे यू हैव टू राइट। वंस यू हैव रिटन दिस देन यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग द ब्रैकेट्स। तो देखिए किस तरह से सॉल्व किए। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग तो इस तरह से ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। देन यू नो दैट ए प्लस ए बिकम्स वॉट? 2a एंड माइनस डी एंड प्लस 4d बिकम्स वॉट? 3d। So a plus a becomes 2a and 4d plus 5 will remain as it is. So 2a and 2a get cancelled, right? तो बचेगा क्या? 3d equal to 4d plus 5. So 4d, ये 3d को लेफ्ट राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो इट बिकम्स माइनस, इक्वल टू ये प्लस 5 को यहाँ पे लेके आएंगे तो इट बिकम्स माइनस 5. सो 4d माइनस 3d बिकम्स वॉट? d इक्वल टू माइनस 5. सो आपको मिल गया d न्यू टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज, देखिए डी मिल गया आपको। डी का वैल्यू कितना था? -5। अच्छा, न्यू टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज -30 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन में दिया है आपको। आप देखेंगे क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि -30 डिग्री सेल्सियस इज गिवन। तो आप क्या करेंगे? ए प्लस डी, वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या था? ए प्लस डी, राइट? तो आप क्या करेंगे? ए प्लस डी विल बी इक्वल टू -30। तो डी का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है -5, तो आपको वहाँ से ए का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज़ -25. करेक्ट? यू गॉट द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज़ -25. तो इसके बाद आपको क्या करना है? सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं और आपको सबका टेम्परेचर इंडिविजुअली मिल सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सबका, ये जो टेबल में आपको वैल्यूज़ दिए हैं ना, ये सब, ये ए माइनस डी में ए और डी का वैल्यू मिल गया आपको, तो सब्स्टिट्यूट करिए तो मंडे का टेम्परेचर मिल जाएगा। ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या होगा? ए, और ए का क्या वैल्यू है वो आप लिखिए। फिर वेडनेसडे का टेम्परेचर मिल जाएगा आपको, व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, तो वेडनेसडे का टेम्परेचर मिल जाएगा। वैसे ही थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे टेम्परेचर यू विल गेट बाय यू सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस फॉर्मूलेस। तो यहाँ पे देखिए वही किया है, आप चेक कर लीजिए, देखिए। ठीक है, इसी तरह से सब कुछ सॉल्व किया है एंड यू विल गेट द वैल्यूज़। अब चेक करके देख लीजिए, ये सभी वैल्यूज़ अपने टेबल में डाल दीजिए, ए और डी का, और मंडे का टेम्परेचर मिल जाएगा, ट्यूसडे का मिल जाएगा, वेडनेसडे का मिल जाएगा, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सो द टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे, सैटरडे सॉरी, इज एज गिवन रिस्पेक्टिवली. Correct? So main thing is that table that you have to remember. Once you remember this table and once you able to form the conditions, तो फिर आपको इजी हो जाएगा। बाद में ए और डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आपको सॉल्व करना है। हाँ, इन लास्ट एक्सरसाइज व्हाट वी हैव डन द सम्स, इन दैट आपको फॉर्मूला बने हुए मिले थे। पेपर में भी आपको फॉर्मूला बना हुआ मिलेगा, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम में आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दिया नहीं रहेगा पेपर में। ओके, क्योंकि ये 4 मार्क्स का है, सो दैट यू हैव टू डू। एक बार आपको फॉर्मूला याद है
और आपको कंडीशन जम गया, आपने बना लिया कंडीशन, देन इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, करेक्ट। सो ऑल दिस थिंग्स रिक्वायर मोर एंड मोर प्रैक्टिस। एक बार में, दो बार में नहीं आएगा ये, आपको उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा, ओके। स्पेशली द वर्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट स्टूडेंट डोंट प्रैक्टिस। इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस यू विल नॉट गेट इट। वर्ड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, ओके। बाकी अभी तक हम लोग ने जो सम किए थे वो तो काफ़ी ईजी से फॉर्मूला बेस्ड है, जस्ट यू सब्स्टिट्यूट एंड यू विल गेट इट। बट वर्ड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। इफ़ यू डोंट डू द प्रैक्टिस यू विल नॉट गेट इट। सो मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। एक बार, दो बार, तीन बार आपको प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपको क्लियर होता है, राइट। Okay students, now next word problem is, on the World Environment Day, free tree plantation program was arranged on a land which is a triangular in shape। देखिए एक environmental program arrange किया था tree plantation का। trees are planted such that in first row there is one tree। देखिए इस तरह से tree का plantation किया कि first row में there was a one tree, in the second row there was a two tree, in the third row there was a three tree। तो फोर्थ रो में कितना ट्री होगा? 4 ट्री। सो इज इट एन AP? यस। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25th रो। मतलब 25th रो में कितने ट्रीज हो गए वो आपको फाइंड करना है। टोटल नंबर मतलब आपको क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है, मतलब S25 आपको फाइंड करना है, राइट। तो सेम थिंग यू हैव टू राइट अगेन एंड अगेन हियर। सी द नंबर ऑफ ट्रीज इन 25th रो विल बी आर एज फॉलोज 1 2 3 4। फर्स्ट रो में फर्स्ट ट्री, सेकेंड रो में सेकेंड ट्री, थर्ड रो में थर्ड ट्री, and so on. Is it an AP? Yes, it is an AP. So A is 1, D is 1, and number of rows are 25, N is 25. So total number of trees are, you have to find that is S25. So you have to write the formula, you have to substitute and you will get the answer. तो ये तो आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। दिस कुड बी होमवर्क फॉर यू, ठीक है। मैंने आपको ये हिंट दे दिया है, देखिए इस तरह से आपको लिखना है स्टेटमेंट। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये सब लिखना ज़रूरी है, ओके। आपको पता है A क्या है, D क्या है डायरेक्टली, बट आपको पूरा लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट इज़ रिक्वायर्ड क्योंकि दिस इज़ 3 मार्क्स सम्स। सो स्टेटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। यू कैन मेक योर ओन स्टेटमेंट ऑल्सो, दैट डजंट मेक डिफरेंस, बट इट शुड बी करेक्ट। फॉर्मूला लिखिए, सब्स्टिट्यूट करिए, यू विल गेट द वैल्यू। सो देर आर दी हाउ मेनी ट्रीज? 325 trees are planted in 25 rows. This was quite easy sums, right? Okay. Next sum. A man borrow rupees 8,000। borrow means उधार लेते, किसी से पैसा लेते हैं ना, उसे borrow बोलते हैं। borrow rupees 8,000 and agree to repay with the total interest of 1,360 in 12 monthly installment. Each installment is being less than the preceding one by 40 rupees. Find the amount of first and last installment. Now see what happened here. One person is there, he have taken a rupees of 8,000 rupees loan, ठीक है। 8,000 रुपये उधार लिए किसी से, और उसने अग्री किया कि वो रिपे करेगा इंटरेस्ट के साथ। कितना इंटरेस्ट लगेगा? 1,360, 12 महीनों के लिए, ओके। सॉरी, टोटल इंटरेस्ट लगेगा 1,360, और वो किस तरह से इंस्टॉलमेंट देगा? मंथली इंस्टॉलमेंट देगा वो, 12 मंथली, ओके। ईच इंस्टॉलमेंट इज बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। हर एक इंस्टॉलमेंट जो जब वो देते जाएगा, ओके, वो कम होता जाएगा। प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है कि लेस देन द प्रीसीडिंग वन, पहले से कम होता जाएगा बाय ₹40। फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट उसने कितना दिया और लास्ट इंस्टॉलमेंट उसने कितना दिया, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन द प्रीसीडिंग, मतलब जो हर एक का प्रीसीडिंग मतलब कम होते जा रहे हैं, मतलब डिफरेंस। लेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे डिफरेंस होता है, राइट। सो डिफरेंस दे हैड गिवन 40, मतलब डी आपको दिया है 40। देयरफॉर द इंस्टॉलमेंट इज इन AP, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही बोल दिया है कि डिफरेंस कितना आएगा? 40 रुपीज़ का डिफरेंस आने वाला है हर महीने में इंस्टॉलमेंट देते समय। तो डी इज़ अ 40, दैट इज दे हैड गिवन, सो दैट विल बी द डी, ओके। सो देयरफॉर अगर इंस्टॉलमेंट जो दैट पर्सन विल गिव द इंस्टॉलमेंट, ओके, दैट विल इन द फॉर्म ऑफ AP। सो कितने महीने में वो रिटर्न करेगा इंस्टॉलमेंट? कितने महीने तक चलेगा? ऐसा 12 इंस्टॉलमेंट वो देगा, राइट। 12 इंस्टॉलमेंट ही इज़ गोइंग टू गिव। सो 8,000 प्लस ही इज़ गोइंग टू गिव द इंटरेस्ट ऑल्सो। 12 महीने जो 12 इंस्टॉलमेंट वो देगा, 12 इंस्टॉलमेंट, ओके, उसका इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1,360। सो टोटल अमाउंट कितना हो गया उसका? 9,360। उतना उसको वापस रिपे करना है।
सो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना देने वाला है वो 12, दैट इज n इक्वल टू 12, राइट. एंड डिफरेंस d इज वॉट 40. अच्छा यहाँ पे d का वैल्यू -40 होगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वाई? बिकॉज इट इज लेस पूछा है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा. दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओनली दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द सम. इफ यू राइट d एज अ 40 तो आपको आंसर सही नहीं मिलेगा. यू हैव टू राइट d इज अ -40 बिकॉज इट इज लेस. ओके, सो यू विल राइट d इक्वल टू -40. सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको फाइंड करना है. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज यू नो दैट इज a. You know that the first installment we say that it is always a, right? तो first installment a है और last installment is what t12. 12 installment में देगा ना, तो last installment will be 12th installment, that is t12 you have to find. So first of all you have to write the SN formula. SN formula लिखने के बाद अभी आपको पता है कि S12 means total installment उसको देना है, मतलब total repay कितना करना है 8000 plus interest, that is 9360, right? That we have done. And 12 upon 2, n is what 12, तो 12 upon 2 2a प्लस n का वैल्यू कितना है 12 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है -40. आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा. ठीक है, 6 नीचे चला जाएगा. आफ्टर दैट 9360 डिवाइड बाई 6 becomes 1560. 2a minus 440 will remain as it is. So this minus 440 will come on the left hand side, it becomes plus 440 equal to 2a. So 2a is equal to 1560 plus 440 becomes what? 2000. So a is equal to 2000 upon 2. So once you divide this you will get 2000 upon 2 is what? 1000. So you got a is equal to 1000. Once you got a ka value, then you use this formula Tn is equal to a plus n minus 1 d. So n is what? 12 installment na? A is what? 1000, n is what? 12 and d is what? -40. So then you have to solve. 12 minus 1 is 11 into -40. So 11 into -40 becomes what? 440. Minus plus becomes minus sign, right? So once you minus 1000 minus 440 you will get what? 560. So first installment will be rupees 1000 and the last installment will be rupees 560. So this is how you have to solve the sum. I hope it is clear how to solve the sum, correct? Just go through this lecture once again, okay, and practice these sums. Once you seen the lecture, then you take the book and pen, you write the sum and you practice once again by your own, okay, then you will definitely get the sum, correct? So that's it students. So we have done with this chapter, okay. In the next lecture we will start with the next chapter. Thank you so much students.